very good morning to you. This is Lokesh, and I'll teach you IR, and this is my second visit to Mumbai as well as Reliable IAS. And currently, I'm working in Ministry of External Affairs as Foreign Policy Advisor to the Standing Committee. So, basically, first we will briefly discuss about international relations, what are its prospects, and how it is useful for your prelims as well as mains exam. Now, this IR comes in your GS paper 2, right? Basically, we discuss here that what is in the first unit, we will discuss about what are the basic components of international relation. Like, what do you mean by foreign policy? What do you mean by diplomacy? Right? What are the guiding principles of Indian foreign policy? Like Panchsheel, Gujarat Doctrine, Nuclear Doctrine, right? Look East policy, Look West policy, FT policy. We will discuss about all these factors. In second unit, we will discuss about the India's relation with the major global powers, or like India, US, India, China, India, Russia. In third unit, we will discuss about India's relation with its neighborhood, bilateral relations like India with, it's very important, India with Pakistan right now, in the present context, India with Bhutan, India with Sri Lanka, India with Myanmar, Afghanistan, and so and so. In fourth unit, we will read about that India's relation like with major global groupings like World Bank, IMF, WTO, right? And then we will also discuss about the major bilateral organizations, example Quad, SCO, right? AUKUS. And we will also try to discuss, although they are not in your syllabus, but very important from your exam point of view, like Russia-Ukraine conflict, Israel-Palestine conflict. Anna, we will discuss about all these. UPSC asks you from 50 to 60 marks. IR component. GS paper 2 comprises of 250 marks, right? Out of that, 50 to 60 is of IR, right? And 50 to 60 is for governance, which is also I am taking. Now, 50 to 60 is for social justice, and 100 marks is for polity. And you know, this year topper, Takti Dube, scored only 843 marks. This is not that much. 843 is not that much brilliant mark. So if you score, okay, I'll come on later on, like how to strategize your, preparation from this. In score up and Arab, we will discuss about this, and then we will dive into the syllabus, because directly jumping into the syllabus, So this is for your GS papers. So IR is exceptionally important. And from prelims point of view, every year they ask you from either 3 or 4 questions. Means 6 marks to 8 marks. So the days when the cutoff is roughly dwindling around 85 to 90 marks. Nowadays, right, if you prepare, I'm honestly saying, if you prepare polity also, only polity, because polity, every year 15 to 16 questions are coming. Right. Economy, the strategy, depends on person to person. This is my strategy when I've given 3 interviews. So this is my strategy. Economy is 17 to 18, means this is from 30 to 32 marks. This is 34 to 36 marks. IR, 3 to 4 question is 6 to 8 marks. Environment and modern history, 5 to 6 questions modern history they ask you. If you do that much also, and if you see science and tech, there is a cheat code in science and tech. I always tell in every club, you see, you don't have to apply this. First, research on that, because what I have seen is, you see, from 2011 to 2025 or 2024, so probably, suppose, there will be 150 questions of science and tech in these 12 years of gap, right? You will see 95% of the questions, the answer is all of the above. Answer D is where. No, this is not, I'm not kidding. Seriously. In science and tech, normally the answer is all of the above. No, it is very important. And this, if this polity is your strong, either strong, it can be delipic, you win if you are opti,
political science, because this every year, you know, more 30 to 35% of the students, they are having PSI optional. This year topper is also having, Shakti is having PSI optional. Although she has only scored 279 marks, people have scored more than 300 plus also. And see, only the game changer in UPSC is this essay, ethics, and optional. And I'm sure if you have political science as an optional, because I teach optional also, PSIR, if you study this optional like as a PSIR, obviously you will score good in GS paper 2, because she has also scored 125 in GS paper 2. In other paper, GS paper 1, GS paper 2, and GS paper 3, leave GS. If you score 85 also, na, that's done deal. See, you see nowadays what is going on. Like if you score, this is for general category, means 85 to 90 marks sufficient in prelims nowadays, plus minus 3. For OBC it is 82 to 86 plus minus 3. For SC, ST, AWS, for SC it is like 78 to 80 marks, 76 plus minus 2. For ST it is 70, 74 plus minus 2. Means if you score 35 question, right? If you score 37 question, if you score 40 question, and if you score 43 question out of 100, prelims is not a big deal. But why now you will ask me one question that sir, still कट ऑफ कम क्यों जा रहा है? फिर कट ऑफ इसलिए कम जा रहा है कि बच्चे सी सेट में फेल हो रहे हैं, इसलिए कट ऑफ न्यूट्रलाइज हो रहा है. बच्चों के 200 में से 66 मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं सी सेट में. किसी किसी के 120 नंबर आ जाते हैं जीएस पेपर 1 में, लेकिन सी सेट में, सी सेट इज वेरी इजी, बट स्टिल पीपल फेल्स. व्हाई? इट्स नॉट अबाउट फोकस. See, it's UPSC is all about a mathematical number game. See, how? There are 80 questions, right? Correct question gives you 2.5 marks. If you like negative, it's 0.81. In GS paper 1, correct goes for 2, negative 0.66, right? Now, out of 80 question, 27 to 29 question are from English. Not more than that. 29 से ऊपर नहीं आता, 30 भी नहीं होता है, right? 15 to 20 question from reasoning, ठीक है, और 25 to 30 question, और एक कितना हो गया? मैथ्स. करेक्ट. अब देखो, इंग्लिश तो पूरा अटेम्प्ट करना है. अगर यहां पूरा अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तो कोई कहानी नहीं है, फिर तो आउट. सपोज करो आपने ये पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप स्टेंट स्टीफन से भी पास है ना, डीयू के टॉप कॉलेज से भी पास है, तो भी आपके क्वेश्चन 21 से ज्यादा तो करेक्ट होंगे नहीं इंग्लिश में, 22 से ज्यादा, मैक्सिमम 23. सपोज करो मैं मान के चलता हूं आपके सिर्फ 20 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, 7 क्वेश्चन गलत. रीजनिंग में से आपको मैंने सिर्फ 6 टॉपिक्स दिए हैं कि सिर्फ यही पढ़ के जाना, फिर भी मैं कह रहा हूं आपने बहुत घटिया परफॉर्मेंस किया है. स्टिल आपने 15-20 क्वेश्चनों में से आपने सिर्फ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. कितने? 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से कि सिर्फ 7 क्वेश्चन करेक्ट है, उसमें से भी 5 गलत है. मैथमेटिक्स तो आपका बहुत ही बेकार है. एग्जाम्पल हो भी सकता है, लाइक मैंने आई हैव डन बीटेक फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज, स्टिल मेरा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं था. मैथमेटिक्स हो सकता है किसी का, तुम लोग का सबका अच्छा है, तो फिर तुम्हारे लिए ही है ये. सपोज आउट ऑफ 20 यू अटेम्प्ट ओनली 8 क्वेश्चंस. अब इससे खराब परफॉर्मेंस तो क्या ही बोलूं मैं. 20-25 में से सिर्फ ऐसे 8 क्वेश्चन ढूंढे कि हाँ भाई मेरे को यही 8 करने हैं. इस 8 में से भी 3 गलत है और 5 सही हैं. करेक्ट. टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हमने? 32. करेक्ट. गलत कितने हैं? 15. अब
ये बेस लाइन मैं मानता हूं इसको। अब इसके बाद प्लस माइनस करना पड़ेगा कि कितना नंबर ऊपर नीचे और चाहिए। 32 इंटू 2.5 कितना हुआ, यही है ना, 80 मार्क्स। और इसको करो, इसका कितना हुआ, 80 में से 12 गए, कितने हुए, 68। पास होने के लिए 66 चाहिए। मुबारक हो, पास हो गए आप, ये इतने घटिया परफॉर्मेंस में भी। अब प्रॉब्लम इसमें भी क्या है, बच्चे यूपीएससी में क्या करते हैं, अटक जाते हैं वहां एक सवाल पे। यूपीएससी का सीसेट का एक रूल है, सीसेट का ये एग्जामिनर ये थोड़ी चेक करेगा कि इस बच्चे का सबसे टफ क्वेश्चन करेक्ट है कि सबसे इजी क्वेश्चन करेक्ट है। किसी भी क्वेश्चन पे अगर 25 सेकंड से ज्यादा रुकने को, क्योंकि 25 सेकंड में पता चल जाता है ना कि ये मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमम 30 सेकंड मान लो, क्योंकि पेपर तो 120 मिनट का होगा ना। अब इस 120 मिनट में भैया 55 मिनट तो इंग्लिश के मान के चलो आप, 10 से 15 मिनट ओएमआर भरने का चाहिए, जिसको गोला बोलते हैं, गोला भरने के लिए है? कितना हो गया, 65 मिनट्स। अब बचा जितना पीछे वो सब तुम्हारा सी सेट के लिए, कितना बचा, 55, 55 ही बचा क्या। अब 55 में देख लो कितना रीजनिंग होगा और कितना मैथमेटिक्स होगा। इसका मतलब टोटल करने हमें 7 और 5 12 क्वेश्चन करेक्ट करने 55 मिनट में। अब 12 क्वेश्चन भी अगर पेपर में नहीं ढूंढ सकते, और सी सेट बहुत अच्छा है, यूपीएससी में होना चाहिए सी सेट, क्योंकि सी सेट बताता है कि इस कैंडिडेट में बेसिक एप्टीट्यूड एटीट्यूड है कि नहीं है। वो बात अलग है कि यूपीएससी वाले भी बच्चों के मजे ले रहे हैं आजकल, क्योंकि सिलेबस में लिखा है 10th और 12th तक की मैथमेटिक्स है, और वहां मैथ्स ऐसे पूछ बच्चों, बीटेक वालों के भी तोते उड़ जा रहे हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सीरियसली होके पढ़ना है। जैसे जो बच्चे 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हो, मान लो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 2026 में अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट दे रहा है, तो आपको जनवरी से सी सेट शुरू करना चाहिए। रोज सिर्फ कितनी देर, घड़ी में देख के सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट रोज, बस, इससे 1 मिनट ज्यादा नहीं और 1 मिनट कम नहीं। 31, ठीक है, हेडिंग लिखो यूनिट फर्स्ट, और उसमें हेडिंग डालो बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एक चीज याद रखना, यूपीएससी में अभी इस बार भी मेरे 2 स्टूडेंट्स का हुआ, और जिनसे उम्मीद थी कि इनका 100% होगा, उनका नहीं हुआ, और जिनसे उम्मीद नहीं थी कि उनका हो गया। रीजन एक ही है, जिस बच्चे के पास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासरूम नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यूपीएससी के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, ये बच्चे को 1-1.5 साल बाद समझ में आती है चीज, लेकिन जब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी के सिलेबस में जो जो लिखा हुआ है ना, उसका आपका क्लासरूम नोट्स आपके पास होना चाहिए। एक एक जो जो वर्ड टॉपिक लिखा हुआ है, उस टॉपिक के 1.5 पेज में आप, क्योंकि देखो क्वेश्चन 2 ही टाइप के आएंगे, या तो 10 मार्कर 150 वर्ड्स, या 15 मार्कर 250 वर्ड्स। तो मैक्सिमम किसी भी टॉपिक पे 2-2.5 पेज का नोट्स बहुत है, उससे ज्यादा तो कोई काम का भी नहीं है ना, इजंट इट। तो नोट जितना क्रिस्प होगा उतना बढ़िया है आप लोगों के लिए। और क्लास, मेरे आईआर, मैंने पिछले बार भी यहाँ बच्चों को आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा के गया था मैं, उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन किया है मैंने नोट्स के अंदर, क्योंकि टाइम टू टाइम वैल्यू एडिशन करना होता है, क्योंकि आईआर इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, राइट। मार्केट में भी मेरे मिलते हैं क्लासरूम नोट्स, यहाँ नहीं बट दिल्ली में, ठीक है ना। तो तुम्हें नोट्स सब सब्जेक्ट के, सिर्फ आईआर की बात नहीं कर रहा, खास करके जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, इनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, टोटल 1750 नंबर का यूपीएससी आता है, देखो, लेकिन इन सब्जेक्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि ये सब्जेक्ट्स कोई अच्छे से कर लेना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी है ना, इंडियन सोसाइटी के टॉपिक और सोशल जस्टिस। अब इंडियन सोसाइटी भी 50 मार्क्स की आती है और सोशल जस्टिस भी 50 मार्क्स की, आउट ऑफ 1750, 100 मार्क्स तो यही हो गए। फिर छोटे छोटे कंपोनेंट है, जबकि फिर इधर आ जाओ, गवर्नेंस, आईआर और सोशल, ये आईआर, ये 2 हो गए, ये हो गए 100 मार्क्स के, 100 100 200 तो इधर ही हो गया। फिर जीएस पेपर 3 में आ जाओ, इंटरनल सिक्योरिटी है, 50 मार्क्स की वो हो गई, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट है, 30 नंबर की आती है, 80 मार्क्स ये हो गया। कितना हो गया टोटल, 280। यूपीएससी में एक नंबर पे कम से कम 25 बंदे होते हैं, 1 मार्क्स के डिफरेंस पे। 280 तो आपका कैडर, आपका सर्विस सब बदल सकता है, राइट। 280 मार्क्स,
सिर्फ यूपीएससी में एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे 250 मार्क्स का आता है। बाकी आप देख लो, ना पॉलिटी 250 की है, ना हिस्ट्री 250 की है, ना इकोनॉमी 250 की है, ना साइंस टेक 250 का है, ना ज्योग्राफी 250 की है। ज्योग्राफी भी 60 to 80 मार्क्स की आती है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, दैट इज एथिक्स, राइट। और अगर ये सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो गए ना आपके सोसाइटी, खास करके सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी, तो आपको ऐसे में बहुत बढ़िया मिलेगा फायदा। क्यों, ऐसे में क्या करना होता है आजकल, वैसे भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। आपको किसी भी ऐसे को डिकोड करना है, यही है। उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, उसका गवर्नेंस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट है, यही बताना होता है। कितने वर्ड्स में, 1200, 250, 1250, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास इन सब छोटे छोटे नोट्स के दिसंबर से पहले इन सब के नोट्स हों आपके पास। देखो आईआर के मैं दे दूंगा, गवर्नेंस में पढ़ाऊंगा तो गवर्नेंस के भी नोट्स हो गए, तुम कहोगे तो बाद में मैं बाकियों के भी जो है आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। तो इसीलिए वी शुड हैव, ये नहीं कि क्लास में यहाँ की एकदम इधर उधर देखा और फिर क्लास में गए तो कुछ नहीं मिला। नोट्स होना चाहिए, उससे ये भी पता चलता है कि मैं 2 घंटे 3 घंटे कुछ बैठ के आया हूं तो कुछ किया है मैंने क्लास में। सही बात है कि नहीं। अब देखो हम शुरू करेंगे बेसिकली फॉरेन पॉलिसी। पहले इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लिखे अलग से लगे तो मैं लिखवा भी तो मैं लिखने में कोई जोर तो नहीं आता ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि भाई नोट्स होंगे ही नहीं तो फिर समझे नहीं। अभी मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, सब तो याद रहेगा नहीं तुम्हें। 1 महीने बाद तो थोड़ी याद रह जाएगा। 1 महीने बाद तो जिसके नोट्स में जो रहेगा वही याद रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन नोट्स, ठीक है। तो जो इसमें जो है वो तो दैट इज सफिशिएंट, बट उसके अलावा वैल्यू एडेड मैं कुछ एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा, ठीक है ना। नाउ हम शुरू करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है। अभी पेन छोड़ दो, मैं बताऊंगा जब लिखना है तब। फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है, कोई एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई गोल हो सकता है जिसको उनको परसीव करना है। जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो फॉरेन पॉलिसी एक तरह से एक स्ट्रैटेजी है अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जो टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज होता है। जैसे एग्जांपल, हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है अमेरिका के साथ हो कि हमें उनके साथ अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए। हमारा नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है रशिया के साथ हमें उनके साथ ब्रह्मोस डील करनी है। हो सकता है उनके साथ नेचुरल गैस लेना है, शेल गैस लेनी है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट इजराइल के साथ हो सकता है कि उनका पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन जो आप ये ड्रोन उड़ाते हो, उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन जो है वो इजराइल के पास है। तो हो सकता है कि इजराइल के साथ हो हमारा। ईरान के साथ अमेरिका ने काट्स एक्ट लगा रखा है। एक आगे मैं बताऊंगा आपको, अमेरिका का जो भी दुश्मन होता है, जिसको अमेरिका पसंद नहीं करता, उसके ऊपर एक काट्स एक्ट लगा देता है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज एक्ट। मतलब ये अमेरिका का दुश्मन है, अगर इस देश से कोई भी इंटरेस्ट रखेगा या कोई भी संबंध रखेगा तो उसको हम अमेरिका का दुश्मन कंसिडर करेंगे। इसीलिए जितने भी अमेरिका के अलाइज हैं वो उसके साथ जो है वो रिलेशनशिप, इसी को फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है प्री एस्टैब्लिश्ड स्ट्रैटेजी और गोल्स टू परस्यू योर नेशनल इंटरेस्ट, राइट। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट करेक्ट किसी भी एंगल में हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट इट मे बी इकोनॉमिकल, इट मे बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कालदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया म्यांमार के साथ, राइट। नेशनल इंटरेस्ट बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, एनर्जी, सिक्योरिटी, राइट, रीजनल। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स but you cannot change your neighbors. So it is very, very important that we should have peaceful coexistence with our neighboring countries. And in international relation, nothing is permanent. Nobody is your permanent enemy. Nobody is your permanent friend. The only permanent thing, it is national interest. And national interest is a dynamic concept. आज ये कल वो परसों कोई और, ऐसा ही करते हैं लोग भी आजकल। नाउ की कॉन्सेप्ट्स देखो, की कॉन्सेप्ट्स ये 1 2 3 4, ये इसको छाप दो पूरा, फिर मैं एक एक का मतलब बता दूंगा। एक काम करो, सोवरेनिटी और पावर और डिप्लोमेसी, ये 3, और ये मल्टीलेटरलिज्म, बस यहाँ चलो ग्लोबलाइजेशन भी करो यार।
अब एक हेडिंग लिखो, व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, उसका भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं। फिर लिखो, इट इज अ स्ट्रैटेजी ए स्टेट अडॉप्ट्स। पहले लिखना है व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, हेडिंग, ठीक है, या और फिर उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दो। इट इज अ स्ट्रैटेजी ए स्टेट अडॉप्ट्स। अच्छा, स्टेट का क्या मतलब होता है पता है ना आपको? स्टेट का क्या मतलब होता है, दोबारा बोलो। ओनली गवर्नमेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है स्टेट का? सॉवरेनिटी इज द की कंपोनेंट। फिर ए डिफाइंड टेरिटरी विद सर्टेन रूल, लॉ एंड ऑर्डर, राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी? हाँ तुम बताओ, सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी? यू डोंट हैव एनी आइडिया? यू, लड़कियों में से, हाँ तुम बताओ। वेरी गुड, बस 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 बस, इंटरफेरेंस बोला, बस खत्म। सोवरेनिटी का यही मतलब होता है। जैसे एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम सोवरिन ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 का क्या मतलब है कि भैया 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के जितने भी डिसीजन थे, चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो और चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद में अगर इंडिया के अंदर मान लो मनरेगा लाना हो या मिड डे मील स्कीम लाना हो, तो हमें अमेरिका से पूछना पड़ता है क्या? नहीं। अगर हमें मान लो पेट्रोल खरीदना है यूक्रेन से, एग्जाम्पल, तो क्या हमें रशिया से पूछना पड़ेगा? सोवरेनिटी का यही मतलब होता है कि जब आप अपने देश के डोमेस्टिक फैसले या आप अपने देश की फॉरेन पॉलिसी, वो डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेते हैं विदाउट एंटरटेनिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। दैट इज कॉल्ड सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था 16th सेंचुरी में? थॉमस हॉब्स। इट इज अ स्ट्रैटेजी a state adopts to advance national interest. It is a strategy a state adopts to advance its national interest as articulated by its political leadership, but within a contested geopolitical space. दोबारा बोल रहा हूं, एक बार मैच कर लेना। इट इज अ स्ट्रैटेजी a state adopts to advance its national interest as articulated by its political leadership, but within a contested geopolitical space characterized by complex interstate relation. अब ये ऑप्शनल के अंदर आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी का, ये सब इसका पार्ट है नहीं। कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट रिलेशंस, स्पेस कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरस्टेट रिलेशंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन पॉलिसी का, ये सब ऑप्शनल का काम है इधर ना। सोवरेनिटी का मतलब पता है आपको क्या होता है? पावर ऑप्शनल पेपर, जिन PSIR जो है उसके अंदर दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में आप पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरीज, पेपर सेकंड में पढ़ते हो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जस्ट लाइक GS पेपर 2, सेम GS पेपर 2। पेपर सेकंड होता है, उसके अंदर IR होता है और एक होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है पावर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है कंपेयर कर करके चीजों को पढ़ते हो। जैसे एग्जांपल, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अमेरिका का क्या है, इंडिया में क्या है, ब्रिटेन में क्या है, मतलब चीजों को कंपेयर कर करके पढ़ना होता है आपको। वही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है और बहुत ईजी है। इस बार बच्चों के मैं देख रहा हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 250 में से आप मान के चलो 150 नंबर आए हैं। मतलब 150 नंबर एक पेपर में आना, और दूसरे में अगर 100 भी आए तो 500 में से 250 हो गए ना सीधा। और ऐसा है नहीं ऑप्शनल में दूसरे पेपर में 100 ही आएंगे। मतलब अगर ऑप्शनल में अच्छे ले आओ और ऐसे और एथिक्स में मैं कह रहा हूँ 110 भी ले आओ, आंख बंद करके सो जाओ घर पे, IAS हो। हाँ, ऑल इंडिया रैंक कितना है बताओ? 843। 843 डिवाइडेड बाय 7, मतलब 120 नंबर हो गए लमसम, जिसमें से कि ऑप्शनल में तो ज्यादा आते हैं, एथिक्स में ऐसे में भी ज्यादा आते हैं, GS 1 2 3 में कम भी हो गए तो भी काम चलेगा। ये तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूं कि देखो OBC में कौन कौन है। OBC में है कोई यहाँ? ओबी देखो, जनरल कैटेगरी वाले को 95 टू 130 नंबर तक IAS मिल जाता है, 130 रैंक तक। अगर आपकी 0 से ले मतलब 1 से लेके 130 रैंक तक है तो आपको IAS मिल जाता है। 135 भी हो सकता है, कई बार 140 भी चला जाता है। OBC वाले को
जो होता है वो 130 से लेके 248 तक आईएएस मिल जाता है। अब इसके बाद से लेके इसके बीच तक सारे आईपीएस हो गए। और 248 से लेके अगर किसी की 350 360 तक रैंक है तो आपको आईपीएस मिल जाएगा। उसके बाद आईआर, तो मैं कह रहा हूँ 843 छोड़ो अगर आपका, क्योंकि कट ऑफ अगर 760 जा रही है एग्जाम्पल, ठीक है, आपके अगर कट ऑफ से सिर्फ 20 नंबर ज्यादा है ना, 760 780, और इंटरव्यू में डिसेंट स्कोर भी आपका 180 भी 175 भी, तो भी आपको कोई ना कोई अच्छी सर्विस, अच्छी सर्विस का मतलब स्टार्टिंग की 3-4 सर्विसेज ही, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे इंडियन फॉरेन सर्विसेज हो, चाहे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो, चाहे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो, चाहे इंडियन पोस्टल सर्विस हो। पोस्टल सर्विस मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, कुछ काम नहीं होता उसमें। मेरा एक स्टूडेंट है, वो बताता है मेरे को, कुछ नहीं करना, सुबह 10 बजे जाते हैं ऑफिस, बोले सर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद 12 बजे तक कोई अपनी अच्छी नोवेल पढ़ लेता हूँ, 12 बजे नोवेल खत्म, फोन करके लंच मंगवा लिया, फिर घर चला गया, फिर 4 बजे, जैसे 4 बजे जाते हैं, ड्राइवर को फोन करके बोल देता है गाड़ी ले आओ सर। तो पोस्टल सर्विसेज पूरे स्टेट में एक पोस्ट होती है, पूरे पोस्ट ऑफिस का हेड होता है वो। अरे तो डाकिए का काम है ना चिट्ठी डालना, उसका तो कोई काम भी नहीं है, इसंट इट? बाकी और चीजों के लिए और स्टाफ है, सबसे बढ़िया आराम है। या फिर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, IAAS, ना आप आईएएस है लेकिन IAS है, डबल ए किसी को समझ में भी नहीं आएगा। और पोस्टिंग भी अच्छी अच्छी जगह मिलती है, हांगकांग मिलती है, सिंगापुर मिलती है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में पोस्टिंग फॉरेन में भी मिलती है, क्योंकि वो सारी एम्बेसीज का भी ऑडिटिंग अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अलग अलग कंट्रीज में भी पोस्टिंग मिलती है। और इसमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी आप जाते हो, वर्ल्ड बैंक, IMF, एक अभी वहां पे भी गया था शायद, इंटरपोल में भी जाते हो आप लोग, क्योंकि इंटरपोल में भी हम फंड देते हैं ना, तो जहां जहां इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है वहां वहां सब जगह होगा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ये ऑप्शनल के लिए है। ये और लिखो, पहले लिखो फिर एक साथ समझाऊंगा। अभी अभी हमने सब्जेक्ट शुरू नहीं किया है, पता है ना, अभी वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट जो आएंगे बीच बीच में। सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे पंचशील से। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, इट्स रिलेशनशिप विद फॉरेन पॉलिसी का मतलब इंडिया का पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन होगा, है ना, इंडिया का बांग्लादेश के साथ कैसा होगा, इंडिया का नेपाल के साथ कैसा रिलेशनशिप होगा, है ना, इसका मतलब होता है फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है, डिप्लोमेसी इज द चीफ इंस्ट्रूमेंट कि जिससे हम फॉरेन पॉलिसी करते हैं। डिप्लोमेसी भी 2 टाइप की होती है। एक डिप्लोमेसी होती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, देखो डिप्लोमेसी 2 टाइप की होती है, एक होती है ट्रैक 1, एक होती है ट्रैक 2। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी के अंदर तो मतलब हमारा देश का पीएम और उधर का पीएम, हमारे देश का एम्बेसडर और उनके देश का एम्बेसडर, हमारे देश का हाई कमिश्नर और उनके देश का हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में फर्क पता है ना? देखो, इंडिया का कोई भी आईएफएस होगा जो सेलेक्ट होके जाएगा यूएस में एग्जाम्पल, उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। लेकिन वही आईएफएस अगर पाकिस्तान के अंदर जाएगा उसको हम बोलेंगे कमिश्नर। वाई? जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, जिन जिन कंट्रीज के ऊपर कभी कभी ब्रिटेन ने हुकूमत की है या रूल की है, उन सब कंट्रीज को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज। इंडियन हाई कमिश्नर टू लंदन, जिन जिन कंट्रीज, जो कंट्रीज कभी भी अगर कॉलोनी रही है ब्रिटिशर्स की, उन कंट्रीज में अगर कोई जाता है तो उसको हम बोलते हैं कमिश्नरेट सिस्टम। और बाकी जगह एम्बेसी, बाकी जगह एम्बेसडर होता है डायरेक्टर। तो कहने का मतलब एक तो होता है ट्रैक 1, हमारे देश का पीएम, उनका एम्बेसडर, हमारा एम्बेसडर, या हमारा कमिश्नर या उनका कमिश्नर, इसको बोलते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक होती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल बिजनेस टू बिजनेस, कल्चर टू कल्चर। बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस, मान के चलो इधर का कोई अंबानी है, उधर का भी कोई होगा, इन दोनों के आपस के कैसे रिश्ते हैं, उसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। कल्चर टू कल्चर, एग्जाम्पल, अगर आज हिंदुस्तान में, आज हिंदुस्तान का कोई फेस्टिवल अगर व्हाइट हाउस में दिवाली बनाई जा रही है, तो आप ये अंदाजा लगाओ कि हिंदुस्तानियों ने कितना अच्छा काम किया होगा अमेरिका में, कि जिससे कि एक अमेरिका का राष्ट्रपति भी हिंदुस्तान की दिवाली बनाने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि उसको पता है बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी जनसंख्या में, मतलब इन लार्ज क्वांटिटी देयर इज अ इंडियन डायस्पोरा ना, so it is very important
to have a good relations. And Indians are the backbone in especially in Silicon Valley. Like if you divide India's economy into three segments, ladies and gentlemen, one is primary, other is secondary, and third is tertiary. So the highest number of the growth we have seen after independence is in service sector. And in that service sector, 90% we have seen the growth in the software industry. And Indians are top in software, I'm telling you. Be it software making, be it is software testing, right? Or service product delivery, both. So that is why today in so in our ministry, we have a special division for that. This division is known as ICCR division. इसका काम ही यही है, इंटरनेशनल कल्चरल कॉन्फ्रेंस करवाता रहता है ये. जैसे एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, इनको बोला कि भैया तुम हमारे यहाँ से बुद्धा आए थे, तुम लोग बुद्धा को बहुत मानते हो, तो वहां जाके बुद्धा का मंदिर बना दिया. वो लोग हो गए पागल, इतने में खुश हो गए, हमें दे दिए 50 करोड़ किलो. तुम्हें पता है बिहार के अंदर नालंदा के अंदर जापानीज गवर्नमेंट हर साल पैसा देती है नालंदा को डेवलप करने के लिए. नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और अभी उसको वापस डेवलप कर दिया है. वो बहुत मतलब आर्यभट्ट के जमाने से है, वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी, राइट.